السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج انشاءاللہ ہم مائیگرین ثقیقہ پر گفتگو کریں گے۔ مائیگرین یا ثقیقہ پر خصوصی گفتگو تو ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ سدہ پر بھی عمومی گفتگو ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ سدہ کی کیا تعریف ہے؟ علامہ نفیس کے نزدیک سدہ ایک قسم کا درد ہے جو سر کے اعضاء، اب سر کے اعضاء کیا ہوں گے؟ اقصیائے دماغ۔ آپ نے 3 طریقے کے اقصیاء پڑھا ہے۔ سب سے بیرونی جو ہے آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیچ والے کو اریکنائڈ، اور سب سے نیچے والے کو پایا میٹر، اور سب سے اوپر والے کو جو ہے ڈیورا میٹر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو تھوڑا سا جو ہمیں پوائنٹر لے لینے دیجیے، ابھی ہم اس کو بتاتے ہیں آپ کو۔ یہ سب سے بیرونی، اس کو ڈیورا میٹر یا غلیظہ کہتے ہیں، جو اس کے اندر والی ہوتی ہے اس کو اریکنائڈ کہتے ہیں، اور جو اس سے بھی اندر ہوتی ہے اسے پایا میٹر یا نعیمہ کہتے ہیں۔ تو چاہے دماغ میں ہو یا دماغ کے پردے میں ہو، تو علامہ نفیس کے نزدیک سدہ قسم کا درد ہے جو سر کے اعضاء میں پیدا ہوتا ہے، جس میں ہڈی اور جوہر دماغ کو سدہ کی تعریف سے الگ رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں جو ہڈی ہے دماغ میں، یا جو ہے سر میں جو ہڈی ہے یا جوہر دماغ ہے، اس کو جو ہے تعریف سے الگ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح آنکھوں اور اس کے مانند دوسرے اعضاء کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ قطب المحققین یعنی سر کے اعضاء میں پیدا ہونے والے درد کو ہم سدہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ مزاجی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج 4 طریقے کا ہو سکتا ہے۔ حار ہو سکتا ہے جس کو ہم گرمی کہتے ہیں، یا بارد سردی، یابس یعنی خشکی، اور رطوبت مرطوب تری۔ تو یہ 4 طریقے کے انسان کی مزاجی کیفیت ہوتی ہے: حار، بارد، یابس اور رطوبت۔ اور دوسرا اس کا اسباب ہے مادی۔ 4 طریقے کے خلط پائے جاتے ہیں: دم، بلغم، صفرا اور سودا۔ یہ مادی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یا ریاح غلیظہ وغیرہ سے بخارات جسم میں صعود کرتے ہیں اور پھر سر کی طرف چڑھتے ہیں، تو بھی جو ہے یہ سبب بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد خارجی میں ہمارا باہری ماحول، جس میں دھوپ ہے، سردی ہے، گرمی ہے، جاڑا ہے، برسات ہے، جس طریقے کے خارجی ایکسٹرنل فیکٹرز۔ تو یہ 4 طریقے کے اسباب ہو گئے: نمبر 1 مزاجی، دوسرا جو ہے مادی، تیسرا ریاحی، اور چوتھا خارجی۔ مزاجی میں حار، بارد، یابس یا رطوبت بغیر کسی اخلاط کے، اور پھر اس کے بعد مادی جس میں اخلاط شامل ہیں، دم ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے۔ ریاح غلیظہ اور خارجی ایکسٹرنل فیکٹر، بیرونی ماحول جس میں دھوپ ہے، سردی ہے، جاڑا ہے، برسات ہے، گرمی ہے، سردی ہے، اس طریقے کے خارجی فیکٹرز جو ہے کام کرتے ہیں۔ اب سدہ کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب اس کی درجہ بندی یا اقسام کی بات آئے گی تو سدہ سادہ اور سدہ مادی۔ سدہ سادہ کو سدہ سازش بھی کہتے ہیں۔ کئی بار فائنل ایئر کے پیپر میں سدہ سازش پر مختصر نوٹ لکھنے کو آیا ہوا ہے۔ بچے جو ہے اس لفظ کو سن کر کے گھبرا جاتے ہیں۔ سدہ سازش کو ہی، سدہ سادہ کو ہی سدہ سازش بھی کہا جاتا ہے۔ سادہ جیسا کہ لفظ ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس میں کسی خلط کا غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ مزاج کی اپنی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کے بنا پر سر اور اس کے اعضاء میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کی جو ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا، حار بھی ہو سکتا ہے، بارد بھی ہو سکتا ہے، یابس بھی ہو سکتا ہے، رطوبت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے صرف کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، کسی مادہ کا غلبہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کو 2 حصوں میں فردر تقسیم کیا گیا ہے: سدہ حار سادہ
और शुद्धाय बारिद सादा। तो ये शुद्धा सादा की तारीफ है और दो इसके सब क्लासिफिकेशन या इसकी तकसीम है। और दूसरा है शुद्धाय मादी, जैसा कि नाम से ही इस बात का एहसास हो जा रहा है कि ये दर्द का वजह या सबब मादा है। और मादा जो है इंसान के जिस्म में 4 तरीके का होता है, दम, बलगम, सफरा और सौदा। यानी इन्हीं के अदम तवाज़ुन की वजह से सर और उसके आज़ा में दर्द होता है। तवाज़ुन और अतवाज़ुन को हम कई बार वजाहत कर चुके हैं, एक बार फिर आप देख लीजिए। अगर इस तरीके से बैलेंस है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ एक पल्ला आपका है और दूसरा पल्ला आपको इस जानिब में है। तो अगर एक पल्ला जो ऊपर उठ जा रहा है और एक पल्ला नीचे आ जा रहा है तो इसको हम अदम तवाज़ुन कहते हैं। और जब दोनों पल्ले एक साथ सीधे रहते हैं तो इसको हम तवाज़ुन में कहते हैं। उसी तरह इंसान के जिसमें चाहे खून हो, बलगम हो, सफरा हो, सौदा हो, ये अपने मखसूस तनासिब रेशियो में होते हैं और मिक़दार में होते हैं। जब इनमें तवाज़ुन बना रहता है तो पूरी सेहत रहती है, और जब अदम तवाज़ुन हो जाता है यानी इम्बैलेंस होता है, जो तबई तनासुब है उससे मुख्तलिफ हो जाता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, इम्बैलेंस कहते हैं, अदम तवाज़ुन कहते हैं। शुद्धा या किसी भी मर्ज़ का बाइस बन सकता है। तो इसमें ख़ास तौर से आपने तारीफ़ पढ़ी कि सर या सर के किसी आज़ा में होने वाली दर्द को शुद्धा कहते हैं। और इसमें मुल्ला नफीस ने जो शरह दी उसके हिसाब से हड्डी और जौहरे दिमाग को शुद्धा की तारीफ़ से अलग रखा गया है। इसी तरह से कुतुबुल मुहक्किकीन ने कहा कि आँख और उसके मानंद दूसरे आज़ा में होने वाले दर्द को शुद्धा की तारीफ़ से अलग रखा गया। हालांकि ये कोई शुद्धा बज़ाहिर अपने आप में मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये अर्ज़ है कई तरीक़े के। जब इंसान के जिसमें अदम तवाज़ुन होता है तो मुख्तलिफ़ अक़साम के मर्ज़ पैदा होते हैं और उन मर्ज़ की अपनी अपनी अलामात होती हैं, और उन्हीं अलामात में से एक अलामात शुद्धा है। तो शुद्धा बज़ाहिर कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये अर्ज़ है, मुख्तलिफ़ मर्ज़ का अलामात है, जिसकी वजह से जो सर में दर्द के शक्ल में हमें महसूस होता है। अब ये असबाब जो है ये मिजाज में तब्दीली की वजह से हो सकता है, मादी कैफियत में तब्दीली की वजह से हो सकता है, रियाह की वजह से हो सकता है, खारजी वजूहात से हो सकता है। मिजाज हार, बारिद, रतब और याबिस 4 तरीक़े का होता है। तो इसमें जब कोई जो है अदम तवाज़ुन होगा तो आपको शुद्धा देखने को मिलेगा। मादी जैसा कि हमने बताया, इसमें सफरा, सौदा, दम, बलखम का कोई अदम तवाज़ुन होगा तो ये मादी। रियाही में रियाह ग़रीज़ा, खारजी में बैरूनी अवामिल जिसमें माहौल का दर्जे हरारत है, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, धूप है, तपिश है, रेडिएशन है, कीमियाई माहौल है, गर्द गुब्बार से आलूद माहौल है। तो इन सब के सबब से भी कभी कभी सर में दर्द पैदा होता है। तो इस तरीके से 4 असबाब है। अब दर्जा बंदी में इसको 2 मेन हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुद्धा सादा, जिसमें किसी तरह का इख्लाक नहीं होता, बल्कि मिजाज की अपनी कैफियत, जिसमें हार है, बारिद है, याबिस है, रतूबत है, इसकी वजह से अगर सर दर्द हो रहा है, इसमें अदम तवाज़ुन, कैफियत में अदम तवाज़ुन है, बगैर किसी खिल्त के अदम तवाज़ुन के, तो उसको हम शुद्धा सादा या शुद्धा साजिश कहते हैं। इसके बरअक्स अगर मादा में अदम तवाज़ुन, दमवी, बलगमी, सफरावी और सौदावी मादों में अदम तवाज़ुन के बायस शुद्धा हो रहा है तो उसको हम खिलती या शुद्धा मादी कहते हैं। ये दोनों जो है लफ्ज़ आए हैं एग्ज़ाम में। आइए अब आगे देखते हैं। इनका जो है मुख्तसर एक बिजली शक्ल में हमने पेश करने की कोशिश की है कि ये जो है अब शुद्धा दमवी
ये जो है इसका असबाब क्या है? दम का आदमी तवाज़ुन होगा, सुदाय बलगम में बलगम का आदमी तवाज़ुन होगा, बल्कि बलगम की ज़्यादती। और बलगम का क्या कैफियत होती है? सर्द और तर्द। बलगम क्या होता है? कोल्ड एंड मॉइस्ट, कोल्ड एंड मॉइस्ट इसका होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दमी में क्या है? हार्ड प्लस आपको क्या होता है? हार्ड प्लस मॉइस्ट। और सफरावी में क्या होता है? हार्ड प्लस ड्राई। और जो है आपको बलगमी में क्या होता है? ये सौदावी में कोल्ड प्लस ड्राई। अब यही अलामात भी ज़ाहिर होंगे। अब देखिए दम में है तो खून की ज़्यादती होगी, हैजान होगा, खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब जब खून का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो नब्ज़ शरीर तेज़ चलेगी, पूरी भरी भरी हुई चलेगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी। तो ये अब इसमें जो है आप खूब कसरत से ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं या कब्ज़ वगैरह है तो दमी असबाब हो गए। फिर उसके बाद बलगम में बलगम की ज़्यादती होती है, सर्द और तर ग़िज़ा, चूँकि कोल्ड एंड मॉइस्ट इसकी सिफत ही होती है। तो जब ग़िज़ा जो भी हासिल करेंगे सर्द और तर ग़िज़ा होगी, ज़ूफ़ हाज़मा होगा, कसरत नींद। या ख़ास तौर से आप इसको ज़हन नसीब कर लें, ये बलगम की ख़ास अलामत है, सर्दी और तरी। और जब सर्दी और तरी होगी तो आपके जो है ज़ूफ़ मैदा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाएगा, जिसको तिब्बी इस्तिलाह में वदूदी कहते हैं। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रुक जाएगा, ज़ूफ़ मैदा होगा। और ज़ूफ़ मैदा होगा तो आपको हाज़मा कमज़ोर हो जाएगा, सही तरीके से अखलाक नहीं बन पाएंगे। जो अखलाक बनेंगे या कच्चे होंगे या आपको ख़ाम होंगे, गलीज़ होंगे, तो वो सारे अलामात दिखाएंगे। और ख़ास तौर से इसको नींद भी बहुत आती है। बलगमी मिजाज के लोगों को नींद बहुत आती है, जिस्म भारी भारी रहता है, तो ये ख़ास तौर से है। उसी तरह से सफ़रा की ज़्यादती होती है। अब जब सफ़रा चूँकि हॉट एंड ड्राई है तो गर्मी भी होगी, खुश्की भी होगी, धूप मिर्च मसाला गुस्सा होगा। और सौदा है, सौदा की ज़्यादती होगी, फ़िक्र। ये सौदा जो है आपको ज़हनी इमराज़ का बाइस बनता है। तो फ़िक्र भी लायक होगा, गम भी होगा, खुश्की मिजाज भी होगा, पुरानी बीमारियाँ। खुश्की जो है आप जब कोल्ड एंड ड्राई देख रहे हैं, फिर अलामात में क्या? सर में भारीपन होगा, नब्ज़ कवी होगी, जैसे हमें खून जो है खूब दौड़ेगा तो कवी होगा, चेहरा सुर्ख और आँखों में बोझ होगा। एक हमने जब सिन के एतबार से आपको उम्र के एतबार से दर्जा बंदी की थी, तो पैदाइश से लेके 30 साल तक दमवी अखलाक का गलबा होता है। फिर उसके बाद 30 से 40 तक दम का के साथ साथ सफ़रा की शुरुआत हो जाती है। दम के साथ साथ सफ़रा का शुरुआत हो जाती है। फिर उसके बाद 40 से 60 में क्या होता है? सफ़रा का गलबा हो जाता है। यहाँ पर दम तो होता है, सफ़रा की शुरुआत बिगिनिंग हुई है, और यहाँ पर सफ़रा का गलबा हो गया। इसमें आपका क्या है? सफ़रा का गलबा है। और फिर उसके बाद यहाँ जो 60 के बाद जो है सौदा का गलबा होता है। तो ये ख़ास तौर से मरीज़ जब डॉक्टर साहब के पास आता है तो कम से कम उसकी इसीलिए जो आपको पर्चा बनाया जाता है, मरीज़ की उम्र भी पूछी जाती है, तो उससे बहुत सारा आपको तज़किया करने का मौका मिल जाता है। आप मरीज़ से जितनी बातें करेंगे, एक एक करके वो अपनी अलामात बताएगा, और उस अलामात की बुनियाद पर आप जो है ये तयन करेंगे कि सब्बे मर्ज़ क्या है। दमी अखलाक की वजह से है, बलगमी अखलाक की वजह से है, सफ़रावी अखलाक की वजह से है, या जो है सौदावी अखलाक की वजह से है। जब इसको आपने पहचान लिया तो फिर तादील मिजाज करना है, तादील अखलाक करना है, इज़ाले सबब करना है, वो सब चीज़ें आपको आसान हो जाएगी। लेकिन तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। अब जब हमने कहा कि इसमें जो है दमी में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है अच्छा खासा, जो जैसे यंग नौजवान जो है 1 से पैदाइश से 30 साल तक, तो अब इसमें क्या होगा कि जब ये पैदा होगा तो सर में भारी होगा, और फिर उसके बाद नब्ज़ कवी होगी, चेहरा सुर्ख लाल जैसे नौजवान का, आँखों में बोझिल होगा। अब यहाँ पर
सर में बोझ होगा, ये हमने पहले ही बता दिया, सर में बोझ होगा, दर्द और मध्यम सुस्ती और गुनूदगी, ये बलगम की ख़ास अलामत है। बोझ जो है दिन भर बना रहेगा, दर्द जो है बहुत शदीद नहीं होगा लेकिन मध्यम हमेशा मुतवातिर बना रहेगा, और सुस्ती और गुनूदगी, तो मुतवातिर अगर जो है सर में बोझ है, दर्द है और सुस्ती है, गुनूदगी है, तो वो बलगम का नतीजा है। और फिर उसके बाद अगर सफ़रा है जो हार्ट एंड ड्राई होता है तो इसमें तेज़ी होती है, इसमें जलता हुआ दर्द, चूँकि हार्ट एंड ड्राई सफ़रा की कैफियत है तो जलता हुआ दर्द। अब जब हार्ट है तो प्यास की शिद्दत भी होगी, कड़वा जायका होगा मुंह का, और बेचैनी और इज़्तिराब का आलम होगा सफ़रावी में। सौदाई में दर्द मुस्मिन कैफियत में चला जाता है, यानी क्रोनिक हमेशा बना रहेगा जो है, और देरीना होगा। सर में खुश्की होगी, क्योंकि यहाँ ड्राइनेस है, या खुश्की होगी, खौफ व वसवसा और उदासी। तो इन अलामात की बिना पर आप तयन कर सकते हैं कि दमवी अखलात का खलवा है, या बलगमी है, या सफ़राई है, या आपको सौदाई है। इसके जो ऊपर लफ्ज़ लिखे गए हैं, हार्ट एंड माइस्ट, कोल्ड एंड माइस्ट, हार्ट एंड ड्राई एंड क्या कहते हैं कोल्ड एंड ड्राई, ये अगर 4 कम्बिनेशन को आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन मुकम्मल हकीम अल्लाह की हुक्म से, रहमत से बन जाएंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। फिर वसूल इलाज क्या, अब यहाँ चूँकि दम का जो है गलबा हुआ तो तादील दम आपको किया जाएगा। तो तस्कीन दम, तबरीद जो गर्म है उसको ठंडा करेंगे, तस्कीन सुकूनत, तलतीफ़, खून को हमेशा लतीफ़ बनाया जाता है, थिक वगैरह हो गया तो उसको लतीफ़ बनाया जाएगा। इखराज खून, इसी में जो है फसद भी है, हिजामा भी है और लीच थेरेपी भी है, जो अक्सर डॉक्टर अबूज़र साहब जो है दिखाते हैं अपने जो है प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे। तो इखराज खून का ही जो है फसद, हिजामा और लीच थेरेपी, ये सब इखराज खून, फासिद मादे के इखराज के लिए कुदरती तौर से खून को बाहर, फासिद मादे को बाहर किया जाता है। और इस्लाह कब्ज़, इससे इंसान की इस्लाह कब्ज़, चूँकि कब्ज़ ख़राब हो गया है, ज़ोफ़ हज़म हो गया है, तो ज़ोफ़ हज़म के ज़रा के लिए इस्लाह कब्ज़ करना पड़ेगा। अब इसमें बलगम है तो पहले तहलील किया जाएगा, हल किया जाएगा। इसमें हम पहले बता चुके हैं कि पहले मुंसिफ लगाए जाते हैं और फिर मुसहल लगाए जाते हैं। कभी भी सीधे बराह रास्त आप मुसहल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कमज़ोरी जो है बढ़ जाती है, मर्ज़ और जो है शरबत की तरफ, शवाब की तरफ जाता है। इसलिए पहले मुंज़िज़ बलगम, फिर उसके बाद फासिद मादा को इस नौइयत पर, इस कैफियत पर ले आना कि अखराज के काबिल बन सके। इसका सीधी सी और छोटी सी मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि जो कच्ची रोटी है अगर उसको खाएंगे तो बजाय ग़ज़ाइयत के और आपको मादा मिलने के नुकसान हो जाएगा जो है, लेकिन जब उसी पकी सही तरीके से पकी हुई रोटी को आप करते हैं तो आपके ग़ज़ा का हिस्सा बनती है और जो वो हज़म हो करके आपके जिस्म के में लगती है, जिसकी ज़रूरत को पूरा करती है। लेकिन कच्ची रोटी है तो न हज़म होगा, कैसे काम का नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर मादा बलगमी मादा हो, सफ़रावी मादा हो, दमवी हो, सौदावी हो, सबसे पहले उसका मुंजिज़ किया जाता है, फिर मसालात का इस्तेमाल किया जाता है। अब फिर उसके बाद तस्कीन और तजफ़ीफ़ और तक़वीत मैदा, फिर उसके इसमें जो है क्या है, तस्कीन सफ़रा, क्योंकि हार्ट गर्मी है, शिद्दत है, तो इसको तस्कीन सफ़रा। फिर तबरीद, ठंडा करना, तरतीब मरदूद मॉइस्चराइजिंग, अखराज सफ़रा, ये तरतीब, तनकीब, सौदा, और इसमें भी है इलाज यूनानी क्या है, ये आपको 3-4 अद्वियात हैं। अगर यहाँ पर आपने याद कर लिया तो मोलिजात के किसी भी पेपर में अगर इखलात की वजह से कोई बीमारी पैदा हो रही है, अदम तवाज़ुन के, किसी भी अखलात के अदम तवाज़ुन के सबब में मर्ज़ पैदा हो रहा है, और जबकि हकीकत यह है कि अदम तवाज़ुन होगा अखलात में तभी मर्ज़ पैदा होता है। तो अगर दमवी अखलात का जहाँ जहाँ भी अदम तवाज़ुन हो
तो फसद और हिजामा यह का खून के अखराज के लिए, और शरबत उन्नाब, शरबत नीलूफर, सिकंजबीन, रोगन नफ्सा। आप 1 2 3 4 लफ्ज़ हैं, इसी तरीके से आपको 12-16 हो गए। इतनी अदविया याद कर लें तो आपको पूरे यूनानी के पेपर में जो मुफरत मुरक्कबात की बात नहीं कर रहा, मुफरत अदविया के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी दमवी अखलात की तादील करनी हो तो शरबत उन्नाब, शरबत नीलूफर, सिकंजबीन और रोकने वनफ्सा, ये शरबत नीलूफर अभी और आएगा, इसको मैं बताऊंगा। अब फिर उसके बाद अगर बलखमी है तो तरीक़ उस्त खुदूस, माजून फ़िलासफ़ा, जवारिस कमूनी, रोगन बाबूना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सफरावी है तो शरबत बनफ्सा, और देखिए शरबत बनफ्सा, नीलोफर, सिकंजबीन, रूह सफिस्तान और रोगन बनफ्सा। यहाँ देखिए शरबत नीलोफर और रोगन बनफ्सा, यहाँ भी शरबत नीलोफर और इसका जो है शरबत बनफ्सा। आखिर में ये शरबत बनफ्सा और शरबत नीलोफर यहाँ सुद्दा सफरावी में भी क्यों इस्तेमाल है और सुद्दा दमवी में भी क्यों इस्तेमाल है, हमारे मुअज़्ज़िज़ सामीन में से कोई कमेंट करके बताएगा। चलिए, आप नहीं बताते हैं तो सुनिए। यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर हार्ट है और यहाँ पर भी हार्ट है। ये लफ्ज़ हार्ट जो है कामन है, यानी जो आपको हार की कैफियत है वो सुद्दा दमवी अखलाक में भी है और सफरावी अखलाक में भी है। तो ये अब जो यूनानी में हम तज़ाद अपोजिट कैफियत की दवाएं का इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ जहाँ अगर आपको हार की कैफियत है, बारिद अदविया का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये शरबत नीलूफर और बनफ्सा ये दोनों बारिद अदविया हैं, इसलिए ये यहाँ भी इस्तेमाल होती हैं और ये यहाँ भी इस्तेमाल होती हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं, चूँकि अब यहाँ ड्राईनेस है तो इसमें मरतूब भी करेंगे, तो इसे शरबत की शक्ल में दे रहे हैं और सिकंजबीन की शक्ल में दे रहे हैं। उसी तरह इतरीफल अफ्तैमून, माजून नफरा, शरबत दाव ज़ुबान और रोहनी कद्दू। ये आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप याद कर लें तो मौलजात के किसी भी पेपर में दमवी अखलात से है तो इसको लिख दें, बलगमी अखलात से है तो इसको लिख दें, सफरावी अखलात की वजह से है तो इसको लिख दें, और सौदावी अखलात की वजह से है तो इसको आप लिख दें। अब आगे हम बढ़ते हैं। ख़ास तौर से जिस पर हम तवज्जो देना चाहते थे वो है शहीक़ा या सक़ीक़ा भी इसे कहते हैं। सक़ीक़ा सर का आधा हिस्सा, आधे हिस्से में दर्द होता है और कभी कभी दोनों हिस्सों में हो जाता है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, क्योंकि इस बीमारी में दर्द अक्सर सर के एक ही जानिब होता है, इसलिए हम इसको शहीक़ा या सक़ीक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सक़ीक़ा ऐसा दर्द है जो उम्मन आधे सर में होता है। पहली इसकी खुसूसियत क्या, आधे दर्द सर में होता है, दूसरा वक्फ़े से होता है, ऐसा नहीं कि मुतवातिर होता है, इसका दौरा होता है। अभी जो है आया, फिर उसके बाद 4 घंटे बाद आ रहा है, या 6 घंटे बाद आ रहा है, या 8 घंटे बाद आ रहा है, या 24 घंटे बाद आ रहा है। ये वक्फ़ा होता है, दौरा जो वक्फ़े से आता है और शिद्दत के साथ पैदा होता है, बहुत तेज़ी होती है, आदमी एकदम काँपने लगता है, शदीद दर्द होता है। और इसका सबब अक्सर अखलात हार, जो गर्मी जो है, तो अब गर्मी जो है दम से भी होता है और सफ़रा से भी होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ख़ुसूसन सफ़रा या इनका उरूज होता है। तो सफ़रा की ज़्यादती होती है और इनका उरूज भी होता है। उरूज और जवाल को आप अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे सूरज का उरूज होना और सूरज का ज़वाल होना और सूरज का तुलू होना। सुबह जो है सूरज तुलू होता है और दोपहर में एकदम उरूज पर होता है, शबाब पर होता है, और फिर शाम को तुलू होता है। तो उसी तरीके से इस बीमारी का भी जो है क्या कहते हैं, उरूज, अखलात का जो हार और इनका उरूज है। अहम यूनानी नुक्ता के सुद्दा ख़ास है
عام سدہ نہیں ہے. اس میں کیوں اس کو خاص کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں صفراوی رجحان بھی ہیجان ہوتا ہے اور کبھی کبھی دموی عروج بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا گرمی کی وجہ سے ہے، اور گرمی صفرا میں بھی ہوتی ہے اور دم میں بھی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے دونوں نقطے آ گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف اخلاط ہی نہیں ہوتے. جب اخلاط کا ثواب ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، تو اعصابی تحریک جو ہے، جو نروس ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو کئی بار فگر اس طریقے سے دیا ہے. یہ نروس کے ایک دوسرے کی اینڈنگس ہے اس طریقے سے. اور اس میں کیا کہتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر اوپر سے نیچے تک آتے ہیں. تو یہ ایگزان اور ڈنڈرائٹ ساری چیزیں اس میں تحریک پیدا ہوتی ہے. اور انہی سے کیا ہوتا ہے، ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ میں سوئی شروع ہو جاتی ہے اور فوراً آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ کا ہاتھ وہاں سے کھنچ لیتا ہے. یا آنکھ میں جو ہے کہیں لگ جائے تو اس کو ہاتھ آپ کھنچ لیتے ہیں. اس کو ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، میسج جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، سینسری نروس اور موٹر نروس دونوں کام کرتی ہیں. یعنی سینسیشن کو دماغ تک پہنچایا جائے گا، وہاں پروسیسنگ ہوگی، پھر اس کے بعد کمانڈ دیا جائے گا اور وہ کام ہوگا. یہ سارا جو ہے مل کر کے ریفلیکس ایکشن کہلاتا ہے. تو یہ اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے. اور اعصاب میں تحریک، تیزی آ جاتی ہے، ان کی حرکت میں تیزی آ جاتی ہے. اور اسی لیے یہ جو ہے آپ کو خاص جو ہے شدت کے ساتھ وقت وقت کے ساتھ دکھائی پڑتا ہے. علامات کا ہے، ایک طرف درد ہوتا ہے، پہلے بھی مثلی بھی آتی ہے اور روشنی آواز سے نفرت ہوتی ہے. جب شدید جو ہے شیخہ کا درد ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ نہ کوئی جو ہے اس کو ڈسٹرب کرے، کوئی آواز نہ آئے، اور یہاں تک کہ بلب جلانے کو بھی کہتے بجھاؤ بجھاؤ بلب بجھاؤ جو. تو اب اس کا آپ کو آرام کیا ملے گا، ترکیب کیا استعمال کریں گے کہ اس کو علیحدہ الگ الگ کمرے میں رکھیں جہاں سکونت اختیار کریں اور روشنی بھی وہاں پر نہ. مائگرین کا درست یونانی نام سقیقہ یا شائقہ ہے، اور یہ اخلاط اعصاب دونوں کی مشترکہ بیماری ہے. تو جس میں صرف اخلاط خاص طور سے جو ہے صفراوی ہم نے کہا، یا اس کے ساتھ دموی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اور بیشتر صفراوی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو خلط کا عدم توازن تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعصابی جو ہے حرکت تحریک تیز ہو جاتی ہے. تو یہ اخلاط اور اعصاب دونوں کو مل کر کے بیماری، مشترکہ بیماری ہوتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر دیا ہے اس کے اقسام میں سقیق صفراوی، یعنی صفرا کا یہاں خلبہ ہوگا. اب سب پیتھوجینیسس کیا ہوگی، صفرا کی حدت اور لطافت، گرمی جو ہے بڑھے گی. اس کا عروج دماغ کی طرف ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے اعصاب دماغ کی تحریک ہو جاتی ہے. تو یہ تین آپ کو چیزیں، سب سے پہلے یہ صفرا مان لیجیے کہ ایلو وائلس ہے، یہ کیا آپ کا ہے، صفرا ہے. اور یہ صفرا کی کیا، اس کی مقدار اپ ہو گئی، بڑھ گئی. جب یہ بڑھ گئی تو یہ کہاں جائے گا، دی برین کی طرف سورس کرے گا. یہ کہاں جائے، برین کی طرف جا رہا ہے، دماغ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ وہاں پہنچ کر کے کیا کر رہا ہے، اعصاب کو جو ہے متحرک کر دے رہا ہے. جو آپ کو نیورانس ہے، وہ نیورانس یا اعصاب کو متحرک کر دے رہا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ درد میں شدت دکھائی پڑتی ہے. نمایاں علامات جو تیز درد اور چلن، دھڑکتا ہوا، اور عموماً سر کا ایک جانب ہوتا ہے، روشنی شروع، منہ سے نفرت ہوتی ہے، متلی اور قائد منہ کی کڑواہٹ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ صفرا کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی دم کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو جب دموی علامتیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو ملیں گی. آپ کو دوا ہوگا، نبض بھری ہوئی ہوگی، اور غصہ ہوگا، چہرہ سرخ ہوگا، یہ سارے آپ کے علامات دیکھنے کو ملیں گے. کبھی کبھی سودا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یہ جیسے. تو اب سودائی سقیقہ میں درد کم مگر دوام زیادہ ہوتا ہے. یہ خاص جملہ ہے. یونانی تصویر صرف درد نہیں ہے بلکہ کیفیت بدن کو دیکھتی ہے. اور تشخیص کے اہم ستون کیا ہے، مزاج دیکھا جائے گا، وقت درد دیکھا جائے گا، درد کی نوعیت دیکھی جائے گی، ہمراہ ساتھ ساتھ کیا علامات ہیں، غذا اور موسم سے اس کا کیا تعلق ہے.
اب وصول علاج میں اس میں کوئی خاص ادویات نہیں ہے، اس میں وصول ہی زیادہ تر کام کرتے ہیں. تو اصلاح مزاج کرنے کی کوشش کی جائے کہ مریض کے افعال مزاج کو اعتدال پر لانا، ہار کو باریک یابس کو رطب اور رطب کو یابس سے متوازن کرنا، اور پھر تعدیل اخلاق یعنی تعدیل مزاج، تعدیل اخلاق، اور پھر اس کے بعد منائے عروج، جو عروج پر چڑھ رہا ہے گرم یا ثقیل خلق کو دماغ کی طرف چڑھنے سے روکنا. یہ گرم یا ثقیل، ثقیل مانے ہیوی ہوتا ہے، خلق کو دماغ کی طرف سمود کرنے سے چڑھنے سے روکنا ہے. یہی صحیفہ کو رد کرنے کا اصلی کنجی ہے. اب اس کے بعد تسکین اعصاب و تقویت دماغ، یہ ساری چیزیں کریں گے. لیکن خاص طور سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تشخیص مزاج، تشخیص مادہ اور تشخیص مرض، تشخیص سبب مرض کرنا ہے، اور اسی تینوں کو تعدیل میں کرنا ہے. اس مزاج کی تعدیل کرنا ہے، اخلاق کی تعدیل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے سبب مرض کا ازالہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس میں منائے عروج، منع کرنا، نگیٹو یعنی جو یہ چڑھ رہا ہے دماغ کی طرف اس کو چڑھنے سے روکنا ہے. تسکین اعصاب دینا ہے، تقویت دماغ بھی کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جامع و حتمی بیان کیا ہے سقی کا. اگر اس 20 سلائڈس کو بچے یاد کر لیں تو ایگزام میں لکھ دیں گے تو کچھ نہ کچھ مارکس مل جائیں گے. سقی کا کامیاب علاج نہ صرف دوا میں ہے، نہ صرف درد کش میں ہے یعنی اینٹی بیکٹیریل، بلکہ اصلاح مزاج، تعدیل خلق اور منائے عروج اور تسکین اعصاب. جو 5 چیزیں آپ نے پڑھی تھی وہی چیز، اصلاح مزاج، تعدیل خلق، منائے عروج، اوپر چڑھنے سے روکنا اور تسکین اعصاب، اس کے جامع وصول. اور سقی کا ایک مرکب بیماری ہے یعنی مکسڈ بیہیویئر. مکسڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اخلاق کی وجہ سے بھی اور پلس اعصاب کی تحریک کی وجہ سے بھی، یعنی اس میں اعصاب بھی انوالو ہو رہا ہے، نفس بھی انوالو ہو رہا ہے، اور اخلاق بھی انوالو ہو رہا ہے. دیٹس وائی دس از اے کمپاؤنڈ ڈیزیز، مرکب بیماری ہے جس میں خلق کا غلبہ، اعصاب کی تحریک اور عروج غیر طبعی مل کر درد کو پیدا کرتے ہیں. یعنی جو ہے خلق کا غلبہ، دوسرا اعصاب کی تحریک، اور تیسرا عروج جو سود اوپر دماغ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ 3 خاص چیزیں ہیں اور تینوں کا مرکب ہے. اس کو جو ہے اگر اس کو نمبر 1 مان لیں اور اس کو نمبر 2 مان لیں اعصاب کی طرف تحریک، اور پھر اس کے بعد عروج، اس کو اگر ہم نمبر 3 مان لیں تو یہ 3 کو مل کر کے بیماری پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اس کو مرکب کہتے ہیں، اور اسی لیے اس کا علاج صرف درد کش نہیں ہے بلکہ اصول علاج سے ہوتا ہے. اور اصول علاج کیا ہے؟ اصلاح مزاج، تعدیل خلق، منائے عروج اور تسکین اعصاب. فی امان اللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ایک اور ضروری جو ہے آپ کو اطلاع دینی ہے، واٹس ایپ گروپ کے یونا وید واٹس ایپ گروپ کے کچھ ممبرز جو ہے ایک دوسرا پیپرز جو ہے پڑھانے کی جو ہے گزارش کر رہے ہیں. انشاءاللہ 2-1 دن میں ہم اس کو بھی شروع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اللہ کے رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجیے. فی امان اللہ.